चलो आज फिर से वो नज़ारा याद कर ले, चलो आज फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले। मैं इस शानदार सी शो के अंदर लेके आया हूँ बढ़िया वाले पंच। शुरू हो रहा है आपके लिए बाल कला मंच। हमारे बाल कलाकार इस बहुत ही शानदार सी शाम में किस तरह से प्रस्तुति देने वाले हैं, देखिएगा एक झलक। सबने करारी खबर हाल लिया है, रहेंगे घर पर। मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ। पापा हमारे रहते हैं दूर, भारत माता को बचाते हैं न्यूर, भारत माता को बचाते हैं न्यूर। भारत माँ के वीरों से सीखी हमने प्यार और बलिदान की भाषा। दुनिया वाले पूछे मुझसे भारत कैसे नाम हुआ, मैं बोलूं दुनिया वालों से भारत ऐसे नाम हुआ। जब भारत आजाद हुआ तब आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी तब भारत आजाद हुआ। भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था, इस मिट्टी की खुशबू ऐसी, खून की आंधी बहती थी, वतन का जज्बा ऐसा जो सबसे लड़ता जा रहा। चलो आज फिर से वो नज़ारा याद कर ले, चलो आज फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, शहीदों के खून की वो धारा याद कर ले। आदर, अभिनंदन, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। Hello and a very warm welcome to this wonderful, beautiful, auspicious day which brings together special people like you. I am Pooja Sharma and today I have the pleasure to bring us together and of being your hostess of this day. दिल की खुशी का लबों से कर रहा हूँ इजहार, दिल की खुशी का लबों से कर रहा हूँ इजहार। लीजिए प्रताप राजपुरोहित का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस शानदार सी शो के अंदर लेके आया हूँ बढ़िया वाले पंच। शुरू हो रहा है आपके लिए बाल कला मंच। उसके लिए स्टार्टिंग करने से पहले कुछ लाइंस हैं। ओके, सो मेरी नज़र में आज़ादी वो है जब हिंदी का क ख ग अंग्रेजी के ABC से ना डरे, और इसी डर को पीछे छोड़ते हुए हमारी निष्ठा आपके सामने इंग्लिश स्पीच लेके आई है ऑन दिस 75th इंडिपेंडेंस डे। With freedom in our hearts, faith in our mind and pride in our souls, let's salute the nation on its 75th Independence Day. Happy Independence Day to all of you. A very warm evening to everyone. First and foremost, I would like to express my heartfelt and sincere gratitude to Utkarsh classes for giving me an opportunity to speak before you all. Today, we all are here to acknowledge our privilege of being born in free India and celebrate the 75th independence of our country. We need to ask those born before 1947 to know the pangs of anguish for being enslaved under a colonial rule. Those difficult times and struggles must not be allowed to fade away from our memories. Hence, every Independence Day, we not only celebrate our freedom, but we also pay tribute to the ones who fought for it, to the ones who held a vision for our country, and to the ones who sacrificed their lives for this nation. On this occasion, our thoughts first turn to the great freedom fighters, the people behind our struggle of freedom and the martyrs who made the supreme sacrifice of our country's liberty. This day is a plethora of emotion. It reminds us of the pain of being enslaved, of the strength in unity. It defines sacrifice. It gives us an example that some wars can be won with non-violence, and all of
the things, it makes us value and cherish the freedom we have today. It is our responsibility as proud citizens of this country to sincerely perform our duty and progress together for the growth of this nation. Keeping the sacrifices of our ancestors in mind, we should take an oath to carve a better future for our motherland. At last, I would like to conclude my speech with lines once said by Chandrasekhar Azad. If your blood doesn't race, then it's water in your veins. If your blood doesn't race, then it's water in your veins. For what is the flush of you if it is not of service the motherland? Thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. जय हिंद। जय हिंद। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। आज़ादी के इतिहास से लेकर के स्वतंत्रता के बाद तक की पूरी कहानी निष्ठा ने हमें बता दी। और जो हमारे शहीद थे, अमर शहीद, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले, कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले, कुछ लोग बगावत की अगन लेकर निकले, मगर आज़ादी उन शहीदों की शहादत से मिली है जो सर पर तिरंगे का कफन लेकर निकले। तो आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इस शानदार से शो का आगाज निष्ठा के बहुत ही सुंदर स्पीच के साथ हो चुका है। तो अब आगे हम शुरू करते हैं अगले हमारे एक बाल कलाकार जिनका नाम है पुष्पा। गुड मॉर्निंग। पुष्पा की कविता है और कविता का शीर्षक है बेटियां किसी क्षेत्र में कम नहीं। बिल्कुल सही है। आज बेटियां ओलंपिक में भी देख लो, चाहे कहीं पर भी देख लो, हमारे शो के ही अंदर देखिए स्टार्टिंग निष्ठा ने इतनी अच्छी स्पीच के साथ में, इंग्लिश में वो पॉइजनेस के साथ में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। और सेकंड भी परफॉर्मर हमारी पुष्पा है जो ये बताने वाली है बेटियां किसी से कम नहीं है। बिल्कुल जोश के साथ में अपनी कविता को प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है पुष्पा। हाँ जी, सॉन्ग प्रेजेंट कीजिए। ऐ वतन तेरी बेटियां भी हैं किसी से कम नहीं। ऐ वतन तेरी बेटियां भी हैं किसी से कम नहीं। साहसी वाह वाह। ऐ वतन तेरी बेटियां भी हैं किसी से कम नहीं। कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। मुश्किलों से सामना कर खुद बनी हथियार है। आसमां से इसे जमी तक, आसमां से इसे जमी तक, हर जगह उत्तम रही। है वतन तेरी बेटियां भी है किसी से कम नहीं। है वतन तेरी बेटियां भी है किसी से कम नहीं। मातृका तो है हीन में सारा बेकार है। गर्व करो इन
धरती से अंबर तक देखो, इन्होंने मान बढ़ाया है। अपना तिरंगा बेटियों ने दुनिया में लहराया है। संजबाई जहाँ बांध किसी में, संजबाई जहाँ बांध किसी में, बेटियों सा दम नहीं। है वतन तेरी बेटियां भी है किसी से कम नहीं। है वतन तेरी बेटियां भी है किसी से कम नहीं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, अद्भुत। आपके कंठों में तो माँ सरस्वती का निवास है। इतनी सुंदर आवाज। क्या ये गीत काजल आपने, पुष्पा आपने खुद लिखा है? नहीं सर, सुना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या कहना आपका? बहुत प्यारा, बहुत। और एक मैसेज जाता है सभी के लिए। हमने देखा है कि जो लड़कियां हैं वो सभी फील्ड्स में आगे हैं, लेकिन यहाँ पे आज मैं ज़रूर से बात करना चाहूँगी, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे शहीदों की बात करते हैं तब हम लेडी मार्टर्स के बारे में बात करना भूल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कैसे, मैं सिर्फ सिंपल ही बताना चाहूँगी कि जो महिला सैनिक होते हैं, चाहे वो महिला किसी भी फील्ड में काम कर रही होती है, वो सभी जगह अपना बैलेंस बना के कैसे चलती है, तो ये उनसे प्रेरणा लेने का बहुत अच्छा, मतलब हमारा एक महत्वपूर्ण सा कदम होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कविता तिवारी की एक कविता है, उसकी 2 पंक्तियां मुझे याद आती है कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। तो बेटियां जब भी जिम्मेदारियां आती तो सब काम कर लेती है और बड़े बेहतरीन तरीके से करती है। उसकी एक सुंदर प्रस्तुति हमारी पुष्पा ने प्रस्तुत की। बहुत बहुत आभार पुष्पा, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। अगले हमारे प्रतिभागी कौन है? अगले प्रतिभागी हैं काजल, और उनका स्टार्टिंग हो परफॉर्मेंस, उससे पहले मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी जी। जब बात देश की आएगी हम जान न्यौछावर कर देंगे। वाह वाह वाह। जब बात देश की आएगी हम जान न्यौछावर कर देंगे, जब रुत आएगी मरने की हम कफन तिरंगा कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। इसी तिरंगे से रिलेटेड, झंडा से रिलेटेड प्रस्तुति है हमारी काजल की। काजल, स्वागत है आपका। बिल्कुल काजल, प्रस्तुति दीजिए अपनी झंडा की। तिरंगा की शान जी। हाँ जी, स्टार्ट करूं सर? हाँ जी बिल्कुल। झंडा तिरंगा आपन शान हवे, देश के निशान हवे हो। झंडा तिरंगा आपन शान हवे, देश के निशान हवे हो। लहरेला उड़े आसमानवा ता, क्या बात, चारों ओरिया शोर भइल हो। ऊपर केसरिया रंग शोभेला, नीचवा शोभे हरा रंग हो। ऊपर केसरिया रंग शोभेला, नीचवा शोभे हरा रंग हो। ए भैया बीचवा में शोभेला चक्रवाता, चारों ओरिया शोर भइल हो। हसिया पर भगत सिंह झूले गईले, कितना वीर शहीद भइले हो। हसिया पर भगत सिंह झूले गईले, कितना वीर शहीद भइले हो। ए भैया झुके नहीं दिहले तिरंगा वाता, नाम अमर भइले हो। ए भैया झुके नहीं दिहले तिरंगा वाता, नाम अमर भइले हो। झंडा तिरंगा आपन शान हवे, देश के निशान हवे हो। झंडा तिरंगा आपन शान हवे, देश के निशान हवे हो। ए भैया लहरेला उड़े आसमानवा ता, चारों ओरिया शोर भइल हो।
जय हिंद जय भारत। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी कितनी काजल। मधुर आवाज थी, बहुत मतलब सुनने ही रहने का मन करता है। आपने नोटिस किया ये कौन सी भाषा के अंदर गया था काजल? बिल्कुल। आप कहाँ से है काजल? मैम मैं बिहार से हूँ। अच्छा, तभी वो पता चल रहा था आपके सॉन्ग से। आपका ये आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल भाषा, उसके अंदर था ये झंडा गीत? क्या मैम? काजल सुन पा रहे हैं आप हमें? मैम वॉइस नहीं आ रही इससे। अच्छा, हम कह रहे हैं बहुत ही मधुर गाया आपने बिल्कुल, बच्चा, बहुत ही अच्छा था, गाया। बहुत सुंदर था, अद्भुत था आपका झंडा जो सॉन्ग था। और मुझे याद आता है कि हम गाते हैं कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इतनी सुंदर आपकी प्रस्तुति थी, इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार। आप कौन सी क्लास की विद्यार्थी है? मैम मैं 8th क्लास की हूँ, उत्कर्ष में ही पढ़ती हूँ। अरे वाह, क्या तो बात है। उत्कर्ष देखो कितना फैल चुका है, बिहार के बच्चे इतनी मधुर मधुर आवाज में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काजल, एक ना एक लोकल लैंग्वेज में बिहारी का कोई डायलॉग आपको याद आ रहा है जो बोलते हैं, वो सुना दीजिएगा। जो कोई भी आपने बिहारी भाषा में कुछ बोलना हो तो एक छोटा सा कुछ भी बोल के सुनाइए आप बिहारी भाषा के अंदर। क्या सर, शायरी टाइप का कुछ भी, जैसे का भैया कहाँ बिहारी में बोलते हैं का? वैसा मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, थैंक यू, जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। चलते हैं पूजा मैम, अगले हमारे प्रतिभागी कौन है, अगले हमारे बाल कलाकार कौन है? पहले मैं कहूंगी, नोटिस कीजिए, फर्स्ट निष्ठा, ओके। सेकंड पुष्पा, ओके। थर्ड काजल। तो कंटिन्यूस में लड़कियों का आपको नहीं लग रहा है सर कहीं दबदबा ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा दबदबा हो रहा है। बहुत प्राउड मोमेंट फील हो रहा है आज मैं आप सबके सामने हूं। और नेक्स्ट जो है वो हमें थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स के यूज के साथ में, बड़ी मधुर आवाज में और इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के साथ ही साथ में एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाने वाले हैं। और वो सर आप गेस करिएगा। सो अर्नव, क्या आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? ओके, तो पहले आप पियानो से सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल बजाइएगा। ओके, तो हम गेस करते हैं, उसके बाद में आप साथ में गाइएगा। मतलब हम लड़के भी कम नहीं है ना? तो अर्णव, देखते हैं कौन सी प्रस्तुति देती है अपने पियानो के माध्यम से। गेस करना कौन सा म्यूजिक है और आपको कमेंट बॉक्स में डालना कि ये वाला गीत का म्यूजिक था। देखते हैं किसका गेस सही रहता है। अर्णव, स्टार्ट कीजिए अपनी प्रस्तुति। कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर पियानो बजाया। और आपने तो गेस कर भी लिया कौन सा गाना गाया था इसके माध्यम से, कौन सा? सर, मेरे बचपन की यादें ताजा हो गई। बेसिकली ये एक ऐसी मूवी आई थी बॉर्डर, जिसका सॉन्ग ये वाला सुनते ही गूज़बम्स, अभी भी मुझे गूज़बम्स हो रहे थे। थैंक यू सो मच अर्नव सर। एक बार अर्नव से कहते हैं कि आप वापस बजाइएगा और आप भी गाइएगा, सर भी साथ ही साथ आपके इस सॉन्ग को गाएंगे। हाँ बिल्कुल, एक बस 20 सेकंड के लिए वापस से बजाएगा, मुंह से गाना भी आपको और मैं भी गाऊंगा और हमारे जितने भी व्यूअर हैं वो भी गाएंगे, क्योंकि आज हमें स्वतंत्रता दिवस जो है उसको एंजॉय करने का, शहीदों को याद करने का, गुनगुनाने का दिन है। स्टार्ट करें अर्नव? स्टार्ट, बस सिर्फ 10-20 सेकंड के लिए। ओके अर्नव। या हाँ जी, बिल्कुल। आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है हमें जाती है कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है।
वाह वाह वाह, बहुत शानदार। वेरी वेल डन अर्नव, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने ड्रेस भी बहुत प्यारा पहना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो एकदम। आप कुछ अपने फैमिली के बारे में भी बताएं। अच्छा अच्छा, अर्नव, और कौन कौन है आपके परिवार में? मम्मी पापा, आप लाडले हो सबके, है ना? ओके, थैंक यू अर्नव जुड़ने के लिए। अगले हमारे प्रतिभागी पूजा मैम कौन है जिनको आज इस शानदार शो के अंदर अपनी आवाज करने वाले हैं? अगली जो प्रतिभागी हैं वो फिर से एक बार विशाखा है। तो लड़की है सर, आपको पता जी, चल रहा है, और बिल्कुल। जुनून आज इस बार लड़कियों का ज्यादा है, सर चढ़कर बोल रहा है ये जुनून। सो विशाखा, पूरे जोश के साथ में आप ये जरूर से प्रस्तुति दीजिए। नमस्ते, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, क्या डेकोरम किया आपने, बहुत बैकग्राउंड शानदार। में बहुत प्यारा लग रहा है आपका। थैंक यू सर। जी, ओके, स्टार्ट आज कीजिए। आप सेटअप वेटअप करके बैठे हैं, दैट मींस माइक के साथ में फुल प्रिपरेशन के साथ में आप ये बिल्कुल, प्रेजेंट एकदम करने ready। वाली हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। स्टार्ट कीजिए। ओह माय गॉड, बढ़िया आपने गाया है, हम अपने शहीदों को कैसे भूल सकते हैं। मैं तो मस्तक हो जाती हूँ आपके सामने, शब्द कम पड़ जाएंगे। आपने रियल फीलिंग दी है, जैसे हम स्टेडियम में होते हैं तब जो परफॉर्मेंस होती है, जो म्यूजिक होता है, वैसी वाली फीलिंग। आई होप जो सब अभी देख रहे हैं उनको भी मेरी तरह गूज़बम्स आ चुके होंगे। थैंक यू सो मच विशाखा। विशाखा, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपकी, बहुत शानदार प्रस्तुति थी। हमारे शहीदों ने, कहा भी जाता ना कि उन्होंने जब अपनी आज़ादी हमें दिलाई तो गीत के माध्यम से कहते हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो हमारे विशाखा जैसे हमारे जो देशभक्त लोग हैं, जब उनके हाथ में हमारा वतन है तो भारत को कहाँ डरने की जरूरत है। भारत पुनः विश्व गुरु निश्चित रूप से बनेगा। विशाखा, आपके साथ में कोई आए हैं, अभी अभी एंट्री की है, कौन है वो? विशाखा, आपकी पूरी हेल्प, अच्छा, आपकी पूरी हेल्प की है इस पूरे शो के अंदर आपकी प्रस्तुति के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ऐसे भाई हैं, मेरे भी ऐसे ही भाई हैं, वो मुझे हर दम आगे बढ़ते रहने के लिए कहते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, वो मुझे इनकरेज करते हैं। थैंक यू सो मच। आज मैं इस स्टेज पे सभी भाइयों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहनों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए भाइयों की ताकत की बहुत जरूरत बिल्कुल है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। तो लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा जुड़ने के लिए। आपके भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पूरा कोऑपरेट किया इस शानदार से शो के लिए, आपकी प्रस्तुति के लिए। अगले हमारे बाल कलाकार कौन है, उनकी ओर चलते हैं। हाँ, अगले बाल कलाकार का जब मैं नाम लेना चाहूंगी, उससे पहले एक्चुअली उनकी कविता मैंने सुनी थी तो बहुत प्यारी लगी, तो मैंने 2 लाइंस लिखी हैं उससे। बिल्कुल, स्वागत है। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, एक सैनिक ने क्या खूब कहा है कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ को माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया। वाह वाह वाह, कितनी बड़ी बात। इंस्पायर्ड फ्रॉम दुष्यंत ओनली। थैंक यू सो मच दुष्यंत। आपको हमारी आवाज आ रही है? नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। आज की आपकी कविता प्रस्तुत कीजिए दुष्यंत। उसका शीर्षक, एक जवान जो कि सीमा पर शहीद हो जाता है, जी। उसके घर में उसकी माँ होती है, उसकी बहन होती है, वह जवान मरते मरते एक खत लिखता है अपनी माँ के नाम। जी। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया, तिरंगे में लिपट लाश उसके घर पे आ गई, घर उठी हवाएं उदासी छा गई, तिरंगे में रखा सच जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान जो खत में लिख गया, बलिदान को आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। क्या याद आता है? मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, लेके बिठाना मुझे बाहों में जकड़ना, डंडियों की खेतों पे मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, और दिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने और हो गया, मुझसा कोई डर में तेरे खिलौना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। उसकी माँ उसके लिए चेहरा बना रही थी, किंतु जब इससे लौट आएगा तो मैं तेरी शादी करूंगी, वहाँ नहीं आता है, इसकी खबर आती है। तुम लिखिएगा पंक्तियों, तो चाहता तूने अपने लिए बहू लाएगी, पोते को अपने हाथों से दिलाएगी, लाख बोली पोते की सुन सकी माँ, आंचल में अपन कलियां कुछ सुन सकी माँ, रंगोली सज्जी करके ना घोड़े पे मैं चढ़ा, पसंद पे सवार हो जब लोग से चल पड़ा, कहा माँ तेरे आंचल का तो बिछोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी के रोना नहीं है। हमेशा अपनी बहन से झगड़ता था, आज वो अपने बहन के लिए कहता है, नाच से कहे ना राशि पे याद ना करे, किस्मत को ना कोसे कोई फरियाद ना करे, अब कौन है उसे चोटी पकड़ कर गिराएगा, अब कौन भाई दूध का निराला खाएगा, कहना की बंद कर भाई अब की बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी बार अब की उनकी बार लाऊंगा, अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी के रोना नहीं है। सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ बना हुआ है देश में, सरकार तेरे नाम से कई फंड लाएगी, चौराहों पे तुझको टमाटर बनाएगी, अस्पतालों स्कूलों के नाम रखेगी, अनमोल शहादत का तुझे दाम रखेगी, दलालों की दलाली पे तो सूख देना माँ, बेटे की मौत की कोई कीमत न लेना माँ, भूखे बड़े मखमल पे हमको सोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है।
तुझको कसम है माँ मेरे किरोना नहीं। जय हिंद। बहुत शानदार, बहुत शानदार, अद्भुत। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि दुष्यंत की इतनी सुंदर कविता, जिन्होंने एक सैनिक क्या क्या कैसे कैसे प्रार्थना सिर्फ करता है। सैनिक ही नहीं सर, आज मुझे रियलाइज हुआ बेसिकली। थैंक यू सो मच दुष्यंत, आपकी ये कविता ने हमें ये भावनाएं जागृत कर दी कि सिर्फ बलिदानी सैनिक नहीं देता, उसका पूरा फैमिली, उसकी पूरी फैमिली इससे आहत हो जाती है अगर कहीं पर सैनिक शहीद हो जाता है तो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही। और मैं आपको कहूं तो मुझे कुमार विश्वास की एक गीत की 2 पंक्तियां याद आती है जब मैंने दुष्यंत का ये गीत सुना तब, कि एक सैनिक इतना सब कुछ होने के बाद में भी ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से क्या प्रार्थना करता है कि दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत ना अता करना मौला। शम्माए वतन के लो पर जब, शम्माए वतन के लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। इतनी मतलब ये अभिलाषा रहती है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत जुड़ने के लिए। अगले हमारे बाल कलाकार कौन है पूजा मैम बताइएगा। इस बार थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सर, बिल्कुल, कविता हो गई, सॉन्ग हो गया है, तो आई वांट कि दिस टाइम वी शुड प्रेजेंट, फिर से एक लड़की है आपके सामने, चांदनी। और चांदनी आप कुछ नया करने वाली है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। बिल्कुल चांदनी, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। और देखो हमारे बाल कलाकार में सब तरह का टैलेंट है ना, अच्छा गाते भी हैं, कविता भी पढ़ते हैं, पियानो भी अच्छा बजाते हैं। इस बार चांदनी क्या करने वाली है, चांदनी बताइएगा आप। सर मैं पेंटिंग दिखाने वाली हूँ। वाह, बिल्कुल शो कीजिए आप। सर किस दिखाते हैं। बिल्कुल आराम से। ओह वाह, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, अद्भुत है। कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है आपने। आप तो दिल ले गई, कहते हैं ना कि दुखती रग पर हाथ रख दिया। वैसे पेंटिंग्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये सारी चीजें बहुत ये तो आपकी भी हॉबी है ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लिया है। हाँ जी, जी एक बार फिर से शो कीजिए, एक बार ही। फेवरेट मैम की पेंटिंग दिखाना चाहती हूं। अरे वाह, क्या बात है, दिखाइएगा। आप एक बार फिर से भारत माता से रिलेटेड जो पेंटिंग बनाई है वो शो कीजिए, फिर आप जरूर से आप अपनी फेवरेट मैम की भी दिखाइए। भारत माता की पेंटिंग एक बार वापस से शो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बनाई है। हमारे व्यूअर्स देख करके अंदाजा लगाओ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालो कि ये किससे संबंधित है और कितनी मेहनत की गई, कितनी खूबसूरत लगी है, जरूर आप बताइएगा इस बात का। बहुत सुंदर लग रही है चांदनी आपकी पेंटिंग। अब आप दिखाइए उस पेंटिंग को जो आपके फेवरेट मैम है। एंड एवरीवन, आप सभी गेस करना है, नाम नहीं बताना है। बिल्कुल से, वी आर नॉट गोइंग। आप भी नाम मत बताना चांदनी। अरे वाह, ये तो उत्कर्ष के ही हैं। हाँ जी, है ना, है ना, पहचाना क्या? दे देती हूँ मैं, हिंट ये है 6 to 8 के टीचर हैं वो। और क्या पढ़ाते, इतना बता दीजिए, फिर हमारे बच्चे गेस कर लेंगे। ये बच्चों के ऊपर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच चांदनी। चांदनी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है चांदनी। आप अपनी इस कला को कहीं पर ना रोकिएगा, इतनी ही आपसे दरखास्त है। ओके, कंटिन्यू करिएगा आप पेंटिंग एंड ड्राइंग। चांदनी हमारी भी पेंटिंग बनाओगे क्या? चांदनी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। दोनों ही पेंटिंग आपकी अद्भुत थी। पहले वाली पेंटिंग जो हमारे पूरे भारत देश को समर्पित थी और दूसरी आपके फेवरेट टीचर के लिए आपने बनाई थी। अब हमारे व्यूअर को बता दीजिए आपके फेवरेट टीचर कौन है। ये थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए आप। नहीं, अब रिवील नहीं करते। चलो ये बता दीजिए। हो सकता है नेक्स्ट में कर दें सर, कुछ तो रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलो आप बता दीजिए आपके फेवरेट क्यों है वो टीचर, उसके कुछ कारण बता दीजिए। हम बाद में बता देंगे शो में। वो मेरी तरह दिखती है। अरे वाह, क्या बात है कि मतलब आप भी बहुत क्यूट और इनोसेंट बहुत अच्छे लग रहे हो आप। ओके, थैंक यू चांदनी, बहुत बढ़िया लगा आपकी पेंटिंग देख करके। चलिए अगले प्रतिभागी कौन है, बात करते हैं पूजा मैम। हाँ जी, अगले प्रतिभागी का नाम है रजत। राजित। ओके, राजित। सो राजित, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? राजित गीत गुनगुनाएंगे। क्या क्यूट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं राजित। सर आप नोटिस कीजिए, छोटे छोटे बच्चों में अभी से देशभक्ति के अक्षुण गुण हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना कि भारत पुनः विश्व गुरु बनने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत सही। राजित, आपका क्या प्रस्तुत करने वाले हैं आप? सर सॉन्ग प्रस्तुत करने वाले हैं, तो सुनाइए अपना सॉन्ग।
ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, चाहूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, चाहूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। राजिद, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी कि ए वतन आबाद रहे तू। किसी ने कहा भी ना, इकबाल ने शायद लिखा है कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जमा हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलिस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो निश्चित रूप से ऐसे हमारे राजिद जैसे बाल कलाकार और हमारे देश के बच्चे होंगे तो देश आबाद हमेशा रहेगा और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन रहेगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी राजिद आपकी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सभी बच्चों को एक्चुअली अभी इंस्पायर होना चाहिए कि हमारे में से ही उत्कर्ष के स्टूडेंट्स अगर इतनी भावना रखते हैं देशभक्ति की तो हम सभी रख सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसा जरूरी नहीं है कहीं पे भी कि आप बॉर्डर पे जाकर ही फाइट करें, हम यहाँ से इंस्पायर कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँ जैसे कि अभी ये कोरोना का काल चल रहा था, तो सरहदों पे है उनको तो हम नमन करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में जो हमारी अगली प्रस्तुति देने जा रही है उनका जो टॉपिक है कविता का, उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ लाइंस हैं। बिल्कुल सुनाइएगा। ओके। महामारी के इस दौर में करमवीरों ने दीपक एक जलाया है। क्या बात। महामारी के इस दौर में करमवीरों ने दीपक एक जलाया है, हर सक्षम हर संपन्न मदद को आगे आया है, कोई भूखा ना सो जाए हर घर तक खाना पहुंचाया है, कोई भूखा ना सो जाए हर घर तक खाना पहुंचाया है, कोरोना वॉरियर्स के सर पर एक अलग सा जुनून छाया है, खुद को जोखिम में डालकर हर जान को जिसने बचाया है, खुद को जोखिम में डालकर हर जान को जिसने बचाया है, ऐसे योद्धाओं को सलाम करने का मानस हमने बनाया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अद्भुत आपने। बिल्कुल। सो हमारी नेक्स्ट परफॉर्मर है विशाखा। विशाखा, क्या आप हमारी आवाज सुन सकती हैं? विशाखा नमस्ते, कैसे हैं आप? विशाखा बहुत अच्छे लग रहे हैं आप अपनी कविता की प्रस्तुति दीजिए। बिल्कुल। हिंदुस्तान वह जगह है जिसने ब्रिटिश को भी मात दी, जहां के सेनानियों ने जेल में रातें काट दी, अनेकता में एकता का परिचय दे जिसने विश्व में एक मिसाल दी। अब जब एक बार फिर विश्व पर खतरा मंडराया है, चलो चलकर दे साथ और करे साफ अपने हाथ। विश्व भर में आया है एक खतरा नजर, जानकर सबने करारी खबर, हाँ लिया है रहेंगे घर पर, आएंगे राह में कांटे मगर, मिटाएंगे कोरोना का डर, बनाएंगे फिर एक दुनिया अमर, मिटाएंगे कोरोना का डर, बनाएंगे फिर एक दुनिया अमर। सैनिक जो खड़े हैं अंगारों पर, ना मरने जीने की उम्मीद कर, सैनिक जो खड़े हैं अंगारों पर, ना मरने जीने की उम्मीद कर, उनके दिलों में खुशियाँ हो अगर, मिलकर लड़ेंगे सब होकर निडर, मिटाएंगे कोरोना का डर, बनाएंगे फिर एक दुनिया अमर, मिटाएंगे कोरोना का डर, बनाएंगे फिर एक दुनिया अमर।
जय हिंद जय। वाह वाह, Thank you बहुत so much. क्या गजब, कितनी विशाखा, मीठी ये आवाज है। आपने लिखी है? यस मैम। तभी जो खुद लिखता है ना सर, वो उसको उतने अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है। बिल्कुल। बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया आपने, बहुत अच्छे से गाया भी, जहाँ पर ले दी है, क्या बात है। विशाखा, आप बहुत अच्छे लेखक हैं और बहुत अच्छे प्रस्तुतिकर्ता भी। आप आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और हमारी दुआएं हैं कि आप आगे जाकर के बहुत अच्छे लेखक और बहुत अच्छे कवयित्री बनेंगे। ऐसे हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारी विशाखा को आशीर्वाद दीजिएगा कि भविष्य की हमारी कवयित्री बनेगी विशाखा। विशाखा, बहुत सुंदर लगा आपकी प्रस्तुति सुन करके। और किसने कहा भी है ना कि जंग सिर्फ सीमा पर ही नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल सर, देश वही में मैं भी रहकर, कहने वाली जी, थी। देश में रहकर भी देश के अंदर जो भी विपत्तियां आती है, आपत्तियां आती है, वहां मुकाबला करके देश के लोगों का सहयोग करके भी जंग लड़ी जा सकती है। ऐसी एक सुंदर प्रस्तुति हमारे विशाखा ने दी थी। विशाखा, बहुत बहुत आभार, जुड़ने के लिए धन्यवाद। विशाखा के साथ ही साथ सभी कोरोना वॉरियर्स को भी उत्कर्ष की बिल्कुल। टीम की तरफ से, निर्मल सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले हमारे बाल कलाकार कौन है, पूजा में छोटा बताइएगा। सा है, एक छोटा सा अक्षता नाम है उनका, और वो प्रस्तुत करने वाली हैं जो डायरेक्ट प्रेजेंट ही कर दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बिल्कुल, प्यार। अरे अरे वाह। वाह, क्या लग रही हैं आप अक्षता। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। तो फटाफट से प्रेजेंट करके पूरी इंडिया को एक बार का स्तब्ध कर दीजिए आपकी ड्राइंग। वाह 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 वाह, क्या सुंदर, आपने जोड़ा, तालियां बनती है भाई इसके लिए। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत Very माता well की नक्शे के साथ में, भारत के नक्शे के साथ में अपनी इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। बिल्कुल। और आपका खुद का रूप जो आज बाहर हाँ, निकल के बहुत आया है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप कब से पेंटिंग बना रहे हैं? सर फ्रॉम मैनी इयर्स। यूं, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है आपने। पेंटिंग से रिलेटेड कुछ लाइंस भी हैं आपके पास, कुछ बोलना चाहेंगे? आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है हमारी? एक बार जोर से वंदे मातरम बोल दीजिए। यस सर। हाँ, वंदे मातरम। और जोर से। वंदे मातरम। बहुत ये हुई बढ़िया, ना ये बात। बात बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एंड सर आई वांट टू डिवोट सम लाइंस फॉर इंडिया। या बोलिए। यस, वेरी गुड, बोलिए। न सरकार मेरी है, न रोब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गौरव है, मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बात की आपने। क्या मैं जोश के साथ में बोला है। कि मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान मेरा है। बहुत बढ़िया। अक्षिता, आपकी इस पेंटिंग और सुंदर लाइन पर मुझे भी 4 पंक्तियां याद आती है। आपकी परमिशन हो तो सुना दूं? बिल्कुल सर। कि क्या दुआ करता हूं मैं कि दिवाली स्वतंत्रता की आन बन जाए और ईद गणतंत्र की शान बन जाए। दिवाली स्वतंत्रता की आन बन जाए और ईद गणतंत्र की शान बन जाए। 3 रंग बिरंगे को भर लो दिल की पिचकारी में ऐसे कि जहां भी छिड़को हिंदुस्तान बन जाए, जहां भी छिड़को हिंदुस्तान बन जाए। सर, इसी से रिलेटेड मुझे भी एक कुछ पंक्तियां याद है। बिल्कुल सुनाइए। कि जान के दुश्मन को जान कहते हैं, जान के दुश्मन को जान कहते हैं, अरे मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बात, क्या बात, क्या बात। राहत इसी इंदौरी से साहब की related- बहुत हाँ सुंदर जी, पंक्ति आपने बिल्कुल, सुनाई है, बहुत बिल्कुल। सुंदर पंक्ति। इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है। तो नेक्स्ट परफॉर्मर है हमारे प्रवेश। प्रवेश, बहुत अच्छे अरे लग रहे हैं वाह। आर्मी की ड्रेस में। सैल्यूट प्रवेश, बहुत सुंदर लग रहे हो। बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे Thank लग you, रहा है sir. कि आपकी Welcome. फैमिली में भी सब कहीं ना कहीं फौजी हैं, राइट? देखा क्या बात है, आपका एकदम अंदाजा एकदम सही सर, निकला। वो अलग पता चल जाता है। एक बोलने का तरीका, एक आपके उठने बैठने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है जब आप एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। वेरी गुड। प्रवेश, बिल्कुल से आपकी कविता का क्या शीर्षक है? सर मेरी कविता का शीर्षक है फौजी का, मैं एक फौजी का बेटा हूँ। अरे कविता का वाह। शीर्षक फौजी का बेटा है। क्या आपके परिवार में, आपने जैसे बताया कि भाई हाँ, मुझे फैमिली में लगता आपके कौन कौन फौजी है? आर्मी में कौन कौन है? सेना में कौन कौन है परिवार में? मेरे पापा जी भी फौजी थे, अब वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। क्या बात है और मेरे चाचा भी बीएसएफ में थे, जी। और मेरे चाचा के 2 लड़के भी, वो भी आर्मी में ही है। क्या बात है, और क्या आप बात। अब ये कह के हम सबको कर दीजिए एकदम से कि आप भी आगे बढ़कर फौजी में आपका क्या कैरियर, आप कहाँ जाना आप चाहेंगे? कहाँ जाना चाहेंगे?
मेरा भी सर फौजी बनने का ही है। यानी वंशानुगत जो एक जुनून होता है, होता है सर, बिल्कुल खून में होता है। तो चलिए प्रस्तुत कीजिए। एक फौजी का बेटा कविता सुना रहा है, मैं फौजी का बेटा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, प्रस्तुत कीजिएगा प्रवेश। मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, पापा हमारे रहते हैं दूर, भारत माता को बचाते हैं न्यूर, भारत माता को बचाते हैं न्यूर, भारत माँ के वीरों से सीखी हमने प्यार और बलिदान की भाषा, भारत माँ के वीरों से हमने सीखी है प्यार और बलिदान की भाषा। मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ। जब वो जाते हैं पीटी पर हम रहते हैं नींद में, जब वो जाते हैं पीटी पर हम रहते नींद में, जब वो जाते हैं ड्यूटी पर हम रहते हैं स्कूल में, जब वो जाते हैं ड्यूटी पर हम रहते हैं स्कूल। साथ वो हमारे रह नहीं पाते फिर भी हम उन पर गर्व है, साथ वो हमारे रह नहीं पाते फिर भी हमें उन पर गर्व है। मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मम्मी को पढ़ाने के लिए करते हैं मजबूर, मम्मी को पढ़ाने के लिए करते हैं मजबूर, हमारा होमवर्क वीडियो कॉल पर चेक करते हैं और वीडियो कॉल पर डांट भी लगती है उनकी प्यारी, क्योंकि हमें भी उन पर गर्व है। मैं एक फौजी का बेटा हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी प्रवेश आपकी। आप फौजी के बेटे हैं और आपकी प्रस्तुति भी उतनी दमदार थी। बहुत हमारे नहीं है बिल्कुल। एक्चुअली अभी उन सभी फैमिली को फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगी। एक बच्चे का वो जो फीलिंग है कि कैसे वो उन्होंने जो अपनी कविता से बताया, जैसे कि वो कभी नहीं देख पाते हैं, या तो वो सो रहे होते हैं या वो दूर होते हैं, तो कैसे कर लेते हैं आप, कैसे इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ बताइए आपकी फैमिली से रिलेटेड कि कैसे आपको प्रेरणा मिलती है इन सब चीजों को। सर मैम, पापा कभी उधर जम्मू कश्मीर बॉर्डर की साइड लग जाते हैं तो हमको बहुत चिंता होती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे पापा जी है वो देश की रक्षा कर रहे हैं, बस हमको यही मन में लगता है। मतलब परिवार की उनकी याद तो बहुत आती है सर, लेकिन हम समझ सकते हैं, आज हम लोग ये फील कर सकते हैं। तो जितने भी जो भी परिवार जिनके भाई, जिनके पापा जो भी आर्मी में है, उन सबको हम सैल्यूट करते हैं, जो हमारी सीमाओं पर पूरे देश की हमारी रक्षा करते हैं, उन सबको सैल्यूट करते हैं। प्रवेश, आपके पिताजी ने भी देश की सेवा की है, देश की सीमाओं पर डटे रहे हैं और वो रिटायर हुए हैं, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं उन सभी। उन्होंने 1999 का युद्ध भी लड़ा था। क्या बात है। तो आपको तो कहानियां सुनाते होंगे फिर, मतलब वहां पे क्या क्या हुआ, आपको कितना अच्छा लगता होगा ना बार बार उन सारी चीजों को उसी जुनून के साथ में सुनना, एक अलग माहौल बन जाता है। बिल्कुल, मुझे प्रवेश याद आ रहा है कि जब कारगिल का युद्ध चल रहा था ना, उस समय की बात है कि मैं छोटी कक्षाओं में पढ़ता था, 6 to 8 की बात आई थिंक। तो उस समय एक मेरे पवन जी जोशी मेरे टीचर थे, उन्होंने एक कविता मुझे दी थी और मैंने बड़ी बुलंद आवाज में सुनाई थी। 2 लाइनें मुझे याद आ रही है, आपको तो सुना दे उसी बुलंद आवाज के साथ में कि मुझको माँ बंदूक दिला दो, मैं करगिल में जाऊंगा, मुझको माँ बंदूक दिला दो, मैं करगिल में जाऊंगा, दुश्मन को भारत की धरती पर से मार भगाऊंगा। माँ हमने कितना चाहा अपने पाक पड़ोसी को, माँ हमने कितना चाहा अपने पाक पड़ोसी को, पर इसने कमजोरी समझी अपनी इस खामोशी को। प्याला भरा सब्र का अब तो, प्याला भरा सब्र का अब तो, दंड मिलेगा दोषी को, बलिदानी है बच्चा बच्चा आतुर सी इस पिरोसी को। ये मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई। तो बच्चों में वो तेज है आपकी थैंक यू। अभी तक याद है। तो जब मैंने ये कविता सुनी तो भी मेरे में इतना जोश था। तो प्रवेश तो उस परिवार से बिलोंग करता है, तो ये चीजें तो होगी। प्रवेश, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, थैंक यू। अगले हमारे बाल कलाकार कौन है, इस स्वतंत्रता दिवस की पावन संध्या पर स्वागत करते हैं उनका। बहुत ज्यादा सर फीलिंग्स आ रही हैं, वाइब्स बिल्कुल, आ रही हैं, एकदम वातावरण पूरा का पूरा एकदम देशभक्तिमय हो गया। जो सब देख रहे हैं, ओ प्यारा सा बच्चा हमारे क्या बात है, जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई एक बार इस सुंदर से, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हो, अच्छी सी टॉपी। जय हिंद, जय हिंद। नवीन, हाँ जी, कौन सी क्लास में है नवीन आप? सर क्लास 8th क्लास। तो कविता का शीर्षक क्या है आपका, बताइए। हम डरते नहीं है तो हम इसको पोतों से। अरे वाह, तो आई थिंक कि सभी जने जो ये सुन रहे हैं वो आपकी कविता सुनने के बाद में नहीं डरने वाले हैं, उसी जुनून और उसी जोश के साथ में प्रेजेंट करिएगा। ओके, स्वागत है। चलिए। सुन मेरे मूर्ख पाकिस्तान तेरा बाप ने सारा हिंदुस्तान 47 को तू भूल गया क्या कारगिल, देश के बब्बर शेरों ने तुझे रोंदा अपने पैरों से, तू भूल गया रे ओ शैतान तेरा बाप है सारा हिंदुस्तान। सुन ले रे पाकिस्तान तेरा बाप है सारा हिंदुस्तान। हम डरते नहीं है एटम विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से।
यार भेड़िए से नृशक्ति सिंधु की औलाद नहीं, वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। लेकर एटम तुमको किस्मत पर फूल गए, तुम याद करो शिमला समझौता इंदिरा के एहसानों को। ए पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले कि अब की जनसीरी तो नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। मेरी सेना को है प्यारा वतन, न्योछावर इस वेतन और मन तुझे पार डालेंगे, शेरापन कुत्ता है तू कुत्ता ही कर देंगे हम काम तमाम तेरा, कर देंगे हम काम तमाम। सुन ले रे मूर्ख, पाकिस्तान तेरा बाप है सारा हिंदुस्तान। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस कपड़े पर छेड़ रहे सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मस्जिद का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले शिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, पूरी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बहुत तो उसकी मक्कारी, बहुत तो उसका हस्तक्षेप, समझा लो इनको वरना भभूक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अनजान के देश का अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बहुत शानदार, क्या बात है नवीन, आपने तो कमाल कर दिया। ये बाजू क्रांतिकारी वाला फीलिंग आ गया एकदम से, भगत सिंह वाला। नवीन जैसे बोला था ना, बाजू ऊपर करके ऐसे बोला था, हाँ, सीमा पे कोई जवान खड़ा है, एकदम ललकार रहा है पूरे पाकिस्तान को। हमारे कुमार गौरव सर भी अपनी क्लास के अंदर कहते हैं नल्ला पाकिस्तान। कुमार गौरव की क्लास देखते हो आप नवीन? हमारे कुमार गौरव सर की जीके क्लास है, हाँ तो हमारी देखिएगा जरूर। कुमार गौरव भी पाकिस्तान पर बहुत सारी इस तरह की बातें करते हैं, बहुत अच्छी जीके पढ़ाते हैं हमारे कुमार गौरव सर। अभी तो आपने बहुत ज्यादा पूरे इंडिया में वो ना जुनून फैला दिया, एकदम क्रांतिकारी। ये कोई सामने आ जाए पाकिस्तान से रिलेटेड या हिंदुस्तान के बारे में कुछ गलत बोल दे तो काट डालेंगे हम उधर ही उन्हीं को। बहुत और अलग ही था आपका। आपने लिखी थी ये? अरे बहुत बढ़िया। उत्कर्ष में आप हैं, ये हमारा गर्व है। कौन सी क्लास में आप नवीन? 8th क्लास में। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी नवीन, ऐसे ही अच्छी सी प्रस्तुति देते रहें, तरक्की करें, खूब पढ़ें, मौज करें। अगले हमारे बाल कलाकार कौन है, उनसे बात करते हैं। अगले हमारे बाल कलाकार का स्वागत करने से पहले कुछ लाइंस हैं जी। ओके। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं, देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं, तो कहने दो उन सब को, सीने पर जो जख्म है सब फूल के गुच्छे हैं। अगर हम पागल हैं तो पागल ही अच्छे क्या हैं। बात है, क्या बात है। ओके, सो इसी के साथ में देवांशी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? यस मैम। देवांशी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी आज प्रस्तुति क्या है, गीत गाएंगे या कविता सुनाएंगे आप? सर गीत है मेरा आज। अरे वाह, क्या बात, आप गीत गाएंगे। आपकी प्रस्तुति देकर के, आपकी जो अच्छी ड्रेसिंग सेंस देकर के लगता है कि आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार होने वाली है। मैं कहना चाहूंगी, थैंक यू सर। कहते हैं ना कि लड़कियां सिर्फ पाश्चात्य की तरफ बढ़ रही हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस। हमें पता होता है लड़कियों को कि हमें कब कहाँ क्या कपड़े पहनकर प्रस्तुत होना है। और आज काफी सारी लड़कियों को जब मैंने देखा, एकदम भारत माता का जो रूप लेकर के वो बैठी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। भारतीय संस्कृति को मतलब संजोने की जो कला है वो हमारे बच्चों में है। बिल्कुल, प्रस्तुत कीजिए देवांशी। जी सर। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाते कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया
करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किया गीत की हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। भारत देश है ही ऐसा जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और पूरा विश्व इसी बात से चकित है कि ये अनेकता में जो एकता भारत की है, विश्व में कहीं पर भी नहीं है। आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलते हम अगले हमारे प्रतिभागी की ओर। हाँ जी, अगले प्रतिभागी का नाम है यथार्थ और मुझे लग रहा है वो बच्चे हैं और रिलेटेड टू आजाद देश के बच्चे हैं, कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो यथार्थ आप हमें सुन पा रहे हैं? यथार्थ कविता प्रस्तुत करने वाले हैं और कविता का शीर्षक है, यथार्थ की कविता का शीर्षक। यथार्थ बहुत अच्छे लग रहे हो आप, एकदम रेड ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सर, वेलकम। बहुत प्यारे लग रहे हो और छोटे से बच्चे ज्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आजकल के हमारे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपकी सर मैं एक कविता सुनाऊं चाहता हूँ। सुनाइए यथार्थ। हम बच्चे आजाद देश के ऐसा कुछ कर जाएंगे कि लोग हमें भी युगों युगों तक याद रख पाएंगे। जन्म लिया इस पावन धरती पे, इसका कर्ज चुकाएंगे, नया प्रकाश नई रोशनी चारों ओर फैलाएंगे। हम बच्चे आजाद देश के, स्वतंत्र भारत में हमने जन्म लिया, नहीं भूलेंगे कुर्बानी जिन्होंने हमको आजाद किया, उनकी कुर्बानी व्यर्थ न जाने देंगे हम। भ्रष्टाचार गरीबी मिटाकर देश को तरक्की की राह पे लाएंगे। जात पात का बंधन तोड़ो, भेदभाव का फर्क मिटाओ, ऐसा प्यारा भारत देश बनाओ, ऐसा प्यारा भारत देश बनाओ। वेरी गुड, वेरी सुन पा रहे हैं हम आपको। सर मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती, उससे हमारी पहचान होती। भर देता खुशियों से उत्कर्ष परिवार का घर, चाहे उसकी कीमत मेरी जान होती। क्या बात है, क्या हो गया। यथार्थ, जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद, जय भारत। यथार्थ आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई थी और आपकी शायरी तो वाह, A1 ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। यथार्थ प्रॉमिस कीजिए कि जो आपने इस कविता के द्वारा संदेश भेजा है और जो अभी सुन रहे हैं उन सभी को भी ये कि प्रॉमिस कीजिए आप सभी के सभी कमेंट बॉक्स में कि जो नए भारत की हम कामना करते हैं उस नए भारत को आप उज्जवल बनाएंगे। बिल्कुल, हमारे सपनों का भारत जब ऐसे बच्चे होंगे तो निश्चित रूप से बन करके रहेगा। कुमार विश्वास की एक गीत भी ऐसा कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। इधर आपके पास में आपकी कौन है, मम्मी जी है क्या? यस सर। नमस्ते। नमस्ते मैम। यथार्थ ने बहुत अच्छी कविता सुनाई है, यथार्थ ने बहुत अच्छा शायरी भी सुनाई है। यथार्थ की पढ़ाई कैसे चल रही है, अच्छा पढ़ता है? हाँ यस सर। कैसे हैं आप, अच्छे हो? हाँ सर, अच्छे हैं। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? हम लोग यूपी से हैं। यूपी से हैं? यूपी में कहाँ से? उतानपुर से। क्या बात है, यानी यूपी से, राजस्थान से, बिहार से, न जाने कहाँ से बाल कलाकार हमारे साथ छाया हुआ है सर। यानी स्वतंत्रता दिवस की इस पावन संध्या पर पूरे अपन जैसे कहा ना विविधता में एकता, तो पूरे अलग अलग राज्यों के विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और सबका टैलेंट। बिल्कुल, और हमारा उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल 8 राज्यों के अंदर 6 to 12 तक की शिक्षा दे रहा है बच्चों को। और सर वो इन्फॉर्मेशन भी तिरंगा से रिलेटेड जो हमारा आजादी वाला तिरंगा बैच आने वाला है। हाँ बिल्कुल, जो हमारे एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए जो 12th कर लेते हैं साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए तिरंगा बैच भी 15 तारीख से ही 15 अगस्त से ही ऐप के अंदर बच्चों को मिलने वाला है। बिल्कुल, तैयारियां। मेरे चाचा और बुआ भी उत्कर्ष ऐप से ही पढ़ाई करते हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं वो चाचा और बुआ?
सर चाचा RAR और बुआ UPSC पे। बहुत क्या बढ़िया, बात बहुत बढ़िया। यानी उत्कर्ष परिवार के दिल सदस्य गदगद पहले हो गया से ही सर हैं। एक्चुअली। बिल्कुल पूरा परिवार, आपके पूरे परिवार को उत्कर्ष का पूरा परिवार स्वागत करता है और उत्कर्ष इसी की ओर तरीके से से उत्कर्ष से बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। अगले हमारे बाल कलाकार कौन है पूजा मैम, बताइएगा। बिल्कुल बताएंगे, पर सर क्या आप जानते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे हुआ? हाँ, लेकिन क्या पता बच्चे किस नए अंदाज में बता दे। नहीं सर, पहले आप ट्राई कीजिए। भारत का नाम, भारत में जो विविधता है, एकता है, जिसमें जिसे कहते हैं भाईचारा, हो सकता है इस तरह से कुछ हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारी परफॉर्मर है श्रद्धा। श्रद्धा, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो श्रद्धा। आज आप कविता प्रस्तुत करने वाले हैं। श्रद्धा, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल। यस सर। ओके, तो श्रद्धा कविता तो मैंने हिंट दे दी है, सर ने आंसर नहीं दिया है, तो आप अपनी कविता से उस पूरे आंसर को दे बिल्कुल दीजिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको सबको बताइएगा कि भारत का नाम ऐसे हुआ, कैसे हुआ, जानना चाहते हैं हम। यस सर। दुनिया वाले पूछे मुझसे भारत कैसे नाम हुआ, मैं बोलूं दुनिया वालों से भारत ऐसे नाम हुआ। दुआ से भाईचारा भला चाहता है सबका, भानु उदय हुआ इतिहास हमारा है सबका। भाव भक्ति का ज्ञान यही सारी दुनिया को देता है, भाषा और विज्ञान का ज्ञाता कभी नहीं कुछ लेता है। इसीलिए भारत में पहला अक्षर भ का भाव हुआ, मैं बोलूं दुनिया वालों से भारत ऐसे नाम हुआ। राष्ट्रीय रक्षक मानवता का रण की नहीं अभिलाषा है, रणभूमि में है निपुण पर नहीं खून का प्यासा है। रवि और ऋतुओं का वर्णन इसी देश में होता है, ईश्वर चिंतन में रहता बीज प्रेम के बोता है। इसीलिए भारत में दूजा अक्षर निर्माण हुआ, मैं बोलूं दुनिया वालों से भारत ऐसे नाम हुआ। से त्याग तपस्या में ये सबसे आगे रहता है, तलवार तीर के घावों को भी हंस हंस के ये सहता है। तत्वगान का भारत पंडित आज यही सबको देता है, तीन लोक का स्वामी भी है जन्म यही पर लेता है। इसीलिए भारत में तो श्रृंगार हुआ, मैं बोलूं दुनिया वालों से भारत ऐसे नाम हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। क्या सुंदर प्रस्तुति। वैसे मेरा अंदाजा अंदाजा था पहले वाला तो। हाँ बिल्कुल सर। ये क्या आपने लिखी है? नहीं सर, मेरी सिस्टर ने लिखी है। बहुत बढ़िया। सिस्टर को थैंक यू सो मच, और आपने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया उसके लिए भी थैंक यू। और यहाँ पर सभी जो व्यूअर्स हैं उनको कहूंगी कि इस बार कोई आपको बोले तो ये कविता कंठस्थ कर लीजिएगा और उनको इसी तरीके से जवाब दीजिएगा कि भारत का नाम कैसे हुआ। पूरे भारत का एक एक शब्दों का कितना सुंदर बखान किया है। और मैं आपको कहूँ तो चरणजीत सिंह चरण ने भी एक बहुत सुंदर रचना लिखी है इसी संबंध में। लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान जिनको अच्छा नहीं लगता, ये कहते हैं हिंदुस्तान में ये खामियां नजर आती है। तो उन्होंने कहा है, दो पंक्तियां मैं सुनाता हूं आपको कि सच कहता हूँ मान सभी से अच्छा है, अच्छा है अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। उन्होंने बताया भी क्यों अच्छा है कि वेद की ऋचाएं पंचतंत्र की कथाएं और ऐसे उपनिषद पुराण कहीं भी नहीं। तेजु बावरा के सुरतान से जैसे तान रस खान जाए से सुजान कहीं भी नहीं। कि ताज से इमारत इबारत रामायण से इतना बुजुर्गों का मान कहीं भी नहीं। कि मंदिरों में गूंजे गान मस्जिदों में अजान, दुनिया में बुद्ध जैसा धाम कहीं भी नहीं। कि गीता का संदेश बसा है कण कण में, खोज रहे हम राम हर एक घर आंगन में। तुलसी मीर कबीर हमारे दिल में है कविवर टैगोर हमारे जनगण में। इतना सुंदर भारत है सर, आपने भी बहुत थैंक यू थैंक यू। चलिए हम जुड़ते हैं अगले हमारे बाल कलाकार से जो इस शानदार सी संध्या के अंदर अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। बताइए कौन है? सर, आप इतना सारा अच्छे से कैसे गा लेते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अभी मुझे लगता है सभी जने यही पूछना चाहेंगे आपसे। वो एक्चुअली क्या, मेरे भी बचपन से यही देशभक्ति वाला वो जुनून भरा पड़ा है पूरा पूरा। बिल्कुल सर। तो सभी जनों को बहुत बहुत थैंक यू है। और अभी हमारे सामने ओके, सो यहाँ फुल परफॉर्मेंस, पूरा अच्छे से बैकग्राउंड और सामने पियानो है, तो आई थिंक कुछ अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट के साथ में आप प्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, क्या नाम है बच्चा आपका? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
सुन पा रहे हैं आप हमें? प्रज्ञा, यस सर। सुन पा रहे हैं? यस सर। आई क्या बात है, तिलक लगा करके बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। सर तिलक से याद आता है कि थैंक यू सर। जो जिनके बच्चे लड़ने के लिए जाते हैं, युद्ध के लिए जाते हैं, तो माताएं उनको इसी तरीके से एकदम तिलक लगा के, तो आई थिंक ये उनकी मम्मा ने ही किया है ना, तिलक विलक लगाकर उन्होंने। देखिए हमारी ड्रेस कैसे भी जेंटलमैन हो, लेकिन हमारा जो संस्कार है वो हमारे माथे पर है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल, हमारे संस्कारों को कभी नहीं भूलते हैं। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे तरीके से। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए फटाफट से। मैम आई एम रागी फ्रॉम भवानी मंडी, राजस्थान। ओके कौन सी क्लास में आप? सर आई एम इन 7th क्लास। 7। आज क्या परफॉर्म करने वाले हैं आप स्वतंत्रता दिवस की इस पावन संध्या पर? सर मैं आओ बच्चों तुम्हें दिखाया झांकी हिंदुस्तान की। वाह क्या बात है। एक आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, एक बच्चा दिखाने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। चलिए दिखाइए किस तरह से आप अपने हथियारों के साथ में। आज के थोड़े हथियार अलग हैं, पियानो है हमारे पास, बिल्कुल। बट हम उस हथियार के साथ में तैयार हैं। दिखाइए, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी इस झांकी का। थोड़ा सा मोबाइल को आप थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। ओके गुड। हाँ वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। आवाज कम आ रही, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, रखिए मोबाइल को। जीवन काटा सभी व्यूअर्स से बोलिए जय। बहुत बढ़िया, भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रज्ञा, बहुत ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस था आपका। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर लग रहे हो आप, आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। आपको हेल्प किस किसने की? मेरी सिस्टर थी, वो गा रही थी और मैं बता रहा। सिस्टर को लाइए कैमरे के सामने। हाँ मैं यही, क्योंकि आवाज किसी और की आ रही थी। अच्छा क्या नाम है? हेलो शुभांगी। शुभांगी, अच्छा आप भी उत्कर्ष की ही स्टूडेंट हैं? क्या बात है, आपने पहचान लिया है? बिल्कुल सर। ओके, तो शुभांगी कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग देखो मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है समझाने का, वो बहुत अच्छा है। देखो अच्छी बात ये है कि आपको भी थैंक यू बोलना चाहिए कि कैमरे के पीछे थी, लेकिन आपने नाम बोल करके कैमरे के सामने लेके आ गए ना। आपका भी सर मैंने पहले बोला था ना, जैसे कि हर एक लड़की के पीछे उसके भाइयों का हाथ होता है, उसकी ताकत होती है, तो भाइयों के साथ में भी वाइस वर्सा ही है कि भाई के पीछे भी क्यों बहनों, सभी बहनों की ही ताकत होती है उनको आगे बढ़ाने में। भाई का हर तरह से बहनें सपोर्ट करती है। कभी भी भाई नर्वस होता है, कभी कुछ भी होता है तो तुरंत उनका सपोर्ट करती है, नहीं बहुत अच्छा होगा। तो प्रज्ञा की हेल्प करने के लिए थैंक यू। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी आवाज आपकी। उत्कर्ष से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगले प्रतिभागी, अगले कलाकार कौन है? बिल्कुल, अगले जो है उनकी कविता क्रांतिकारी से रिलेटेड है और मैं भी कुछ पंक्तियां क्रांतिकारी से रिलेटेड है जो पेश करना चाहूंगी कि आजादी की इस लड़ाई में शहीदों में शुमार भगत सिंह ने कहा था। गौर फरमाइएगा, आजादी की इस लड़ाई में शहीदों में शुमार भगत सिंह ने कहा था, अंग्रेजों तुम व्यक्तियों को तो कुचल सकते हो लेकिन उनकी विचारधाराओं को नहीं। बिल्कुल, अंग्रेजों तुम व्यक्तियों को तो कुचल सकते हो लेकिन उनकी विचारधाराओं को नहीं कुचल सकते, और उन्हीं विचारधाराओं के फलस्वरूप आज हम इस आजाद भारत में चैन की सांस ले पा रहे हैं। नमन है उनकी शहीदों की माताओं के सपूतों को। थैंक यू सो मच। अच्छा दिव्यांशी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? दिव्यांशी अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
यस सर। हाँ जी, बहुत प्यारे लग रहे हो बच्चा, बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। ओके, सो हेलो मैम। नमस्ते। नमस्ते। ओके, सो आप फटाफट से अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। यस मैम। इस मिट्टी पर आए थे इसी मिट्टी के लाल, इस मिट्टी पर आए थे इसी मिट्टी के लाल, इसी मिट्टी के लिए मरे और अमर कर गए इतिहास में अपना नाम। Hello, my name is Divyanshi Sandhu. I am from Jaipur, Rajasthan, and today I am presenting my self-written poetry, which is Veer Krantikari. क्या थे वो वीर, क्या थी वो वीरांगनाएं, क्या थे वो वीर, क्या थी वो वीरांगनाएं जिन्होंने दिया था क्रांति में साथ। सोचो क्या नहीं थे उनके भी परिवार, या यूं कहे कि देश की चिंता में सोचते थे वो दिन और रात। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने देश के लिए, सोचा नहीं एक पल भी अपने प्राणों के लिए। न्यौछावर कर दिए अपने प्राण, बढ़ाने को देश का सम्मान, बढ़ाने को देश का सम्मान। युद्ध में लड़ लड़कर रक्त वो अपना बहाते थे, युद्ध में लड़ लड़कर रक्त वो अपना बहाते थे। फिर भी युद्ध में लड़ने से कभी नहीं वो हिचकिचाते थे, कभी नहीं वो हिचकिचाते थे। उन्होंने तो दिए थे अपने प्राण भी, देश के लिए हुए थे बलिदान भी। उन्होंने दिए प्राण भी, देश के लिए हुए बलिदान भी। हम वो तो नहीं कर पाए, हम वो तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके सम्मान में उन्हें याद तो किया जाए, उन्हें याद तो किया जाए। कितनी देखी उन्होंने विकट परिस्थितियां, कितनी देखी उन्होंने विकट परिस्थितियां, गिनने बैठ जाएं तो कम पड़ जाएगी पीढ़ियां। घास की रोटी खाना, सीने पे गोली खाना, अपना रक्त बहाना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। सभी ने मानी पराधीनता, सभी ने मानी पराधीनता, सोचा कौन करेगा शुरुआत। उन गुलामी के 200 सालों से अच्छा होता वह एकता का भाव, वह एकता का भाव। यूं तो अब भारत को हम बताते हैं एकता का प्रतीक, किंतु उस समय सभी ने देखा बस अपना ही हित, किंतु कुछ ने तो मानी थी उनकी भी सीख। सोचो कितनी मेहनत की थी उन वीर क्रांतिकारों ने, सोचो कितनी मेहनत की थी उन वीर क्रांतिकारों ने, ताकि पकड़ ले सभी एक दूसरे का हाथ। जो किया उन्होंने हमारे लिए उसका प्रमाण है हमारी ये स्वतंत्रता आज। तो हमें भी भूलना नहीं चाहिए अपनी संस्कृति और सभ्यता का ताज। उन्हें ये भारत भूल न जाए, इतना तो करना चाहिए उनके लिए, इतना तो करना चाहिए उनके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। और आपकी इस प्रस्तुति से प्रभावित होकर के हम सभी लोग जितने भी लाइव देख रहे हैं वो लोग उन हमारे अमर शहीदों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्हीं की बदौलत हम आज आजाद भारत के अंदर सांस ले रहे हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा ये लगा कि आपने लिखी है। बिल्कुल, बहुत टैलेंट सारा उत्कर्ष में ही भरा है सर, ये तो आज कंफर्म हो गया है। बिल्कुल। पूजा मैम, अगले हमारे बाल कलाकार कौन है जो देशभक्ति की प्रस्तुति देने वाले हैं? फिर से एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी बच्ची है हमारे सामने, और वो अभी से अपने दिल में ये जुनून लेकर है कि मैं भारत का जवान हूँ। इसी कविता के साथ में हमारे सामने है तान्या। तान्या, स्वागत है आपका। हेलो सर। हेलो, कैसे हो तान्या? आई एम फाइन सर। ओके सर, फटाफट से बताइए तान्या अपनी कविता। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत जवान हूँ। मैं उस स्थल की रेत हूँ, मैं सियाचिन का आसाम हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून की जलती रेत पर लेटा कहता हूँ कि सर्दी का मौसम है। दिसंबर की ठंड को पीकर कहता हूँ कि गर्मी का मौसम है। मैं भूमि 9 दिन तक दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन तक दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांसों को फुकों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर के कपड़े धोता हूँ। आज की क्या औकात, मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान, दुश्मन से नहीं डरता। जय हिंद। बहुत शानदार तान्या, आपने भारत के जवान की जो हिम्मत और जज्बा है उसको आपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया। बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर के। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत जोशी, बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में आप? बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। थैंक यू सो मच बच्चा। अभी हमारे सामने नेक्स्ट जो परफॉर्मर है वो है संचिता। संचिता, संचिता अपने आप को अनम्यूट कीजिए। संचिता, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। बहुत प्यारे लग रहे हो आप एकदम। तो देखो, कविताओं का दौर बहुत हो गया, मुझे लग रहा है कुछ गीत हो जाए तो मजा आ जाए। मैं यही कहना चाह रही थी कि इस शो का अंत हम एक प्यारे से गीत के साथ करें तो कितना प्यारा होगा। बिल्कुल। संचिता की क्या प्रस्तुति है, संचिता बताइएगा।
अच्छा, थोड़ा सा आप माइक को सही कीजिए बच्चा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, अदरवाइज ऑल फाइन है। ओके, प्रस्तुत कीजिए अपनी प्रस्तुति संचिता। जिसने जलाया है अब जाके कहीं हमने सड़ते ये किसने रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौरग से मैं तुमसे कहीं यार सजा मेरी ज़मीं मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिससे करके फूल करे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा तेरी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपकी संचिता। और ये हमारी एक पिक्चर है उसका, ये बेहतरीन गाना है और बहुत काफी ये फेमस हुआ था। अच्छे सारे बहुत सारे इस पर वीडियो भी बने हैं। बहुत अच्छी आपकी आवाज है। इतनी इंस्पिरेशनल थी सर कि क्योंकि चंद आई थिंक 13 से 15 सरदार ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ उसमें उनमें जुनून था। वो ये नहीं डरे, वो भागे नहीं, इसी मुकाम को पाने के लिए वो आगे बढ़ गए और उन्होंने मरते दम तक लड़ाई करी। यही हम सभी की भावनाएं भी होनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए बेसिकली, चाहे वो कोरोना हो या कुछ भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगले हमारे एक बाल कलाकार कौन है बताइएगा। बिल्कुल, अगले बाल कलाकार हमारे सूर्य प्रकाश हैं। सूर्य प्रकाश, एकदम सूर्य की भांति चमक रहे हो आप। आपकी कविता गीत क्या है बताइएगा हमारे व्यूअर को। जब भारत आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ। अच्छा, आपकी कविता का शीर्षक है जब भारत आजाद हुआ। सूर्य प्रकाश सुनाइए अपनी कविता। जब भारत आजाद हुआ तब आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी तब भारत आजाद हुआ। भगत सिंह ने फांसी लेती, इंदिरा का जनाजा उठाता, इस मिट्टी की खुशबू ऐसी खून की आंधी बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा जो सबसे लड़ता जा रहा था, लड़ते लड़ते जाने गई तब भारत आजाद हुआ था। फिरंगियों ने वतन छोड़ा, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था, फिर दो भागों में बांटा, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। सरहद नाम की रेखा खींची, इसे कोई पार न कर पाया था। ना जाने कितनी माएं रोई और ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। हम सब ने साथ रहकर एक ऐसा समय भी काटा था, वीरों ने कुर्बानी दी थी तब भारत आजाद हुआ था। वीरों ने कुर्बानी दी थी तब भारत आजाद हुआ था। बहुत सुंदर प्रस्तुति सूर्य प्रकाश आपकी। भारत जब आजाद हुआ तो क्या क्या हमने भारत के देशवासियों ने जो खोया था उसको आपने कविता के माध्यम से व्यक्त किया। यानी 1857 के महासंग्राम से लेकर 1947 तक जो महायुद्ध चले थे, लड़ाइयां चली थी, उन सब अमर शहीदों को हम स्वतंत्रता दिवस की इस पावन संध्या पर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस महान देश को अपने योगदान और बलिदान से संवारने वाले हर देशवासी को हम धन्यवाद कहते हैं। इसी बात पर हम अपने शब्दों को विराम देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारा बाल कला मंच 2.0 का आगाज हो चुका है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी निर्मल सर और एसवी सर का, जिन्होंने हमें ये मंच दिया है। हम यहाँ पे सिर्फ एक चेहरा है, हमारे पीछे बहुत सारे लोगों की एक टीम काम करती है। जो भी मैंने आज प्रस्तुति दी है उन सब में बहुत लोगों का योगदान रहा है। तो मैं यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन टीम, मुझे शायरियाँ देने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पायर करने के लिए तुम कर सकती हो, एसवी सर को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। और बाल कलाकार हमारे आज जो यहाँ पे प्रस्तुति दे रहे हैं, कल जाकर के ये कोई इनमें बहुत बड़े बड़े कवि बनेंगे, कोई शायर बनेंगे, कोई देश में सैनिक बनेंगे। ऐसी हमारी सबको आपको शुभकामनाएं। और चंद पंक्तियों के साथ में हम इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी।
सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो आप भी, इसी बाल कला मंच में फिर हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं अंत इस बात के साथ करना चाहूंगी कि सभी जहां भी बैठे हैं जरूर से एक बार हमारे साथ में जोश के साथ में बोलिएगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।